Hello friends, welcome to SIDS Chemistry and welcome to the session where we are going to learn about the how to understand the effect of temperature on rate of reaction, on speed of reaction. टेम्परेचर की इफेक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है उसके लिए जो इक्वेशन डिराइव करना है वो इक्वेशन आज हम डिराइव करने वाले हैं एंड दैट इक्वेशन इज़ वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में दो टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। Very first type of numerical is that the order of reaction kind of numerical, and second kind of numerical is that effect of temperature type of numericals. तो हमने order of reaction type के सारे numericals learn कर लिए हैं. Now we are going to learn about the effect of temperature and that's type of numericals. तो उसके लिए आज हम सबसे पहले effect of temperature के लिए जो equation है उसको derive करेंगे और उसके बाद उसकी application पढ़ेंगे. So now let's start today's session and let's enjoy the session. Hello friends, welcome to SIDS Chemistry and let us start today's session. In the last session we discussed about the effect of temperature and its theory, and today's session we are deriving the equation for the rate constant relationship with the temperature, that is effect of temperature on the rate constant. तो over the screen सबसे पहले हम वो याद करेंगे कि what is Arrhenius equation. And if you remember Arrhenius equation was K is equal to A into E raised to minus EA upon RT. और इसके थ्रू अगर हम इसकी इफ़ेक्ट टेम्परेचर से हमें शो करनी है तो हमें सबसे पहले एक ब्लैंक पेज पे जाके इसको समझना होगा. तो लेट अस गो टू द वन ब्लैंक पेज and we are writing again the equation, that is K is equal to A into E raised to minus EA upon RT, where K is equal to rate constant, A is equal to Arrhenius constant minus EA. EA का जो term है that is activation energy. It is the energy required to start the reaction. In fact, it is the minimum energy required to start any of the chemical reaction. किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. R is a gas constant and T is a temperature. Now if I convert this equation into natural logarithm format, then the format will be like this. I can write like this. This will become ln of K is equal to ln of A minus EA अपॉन RT. नाउ डियर फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को हम टेम्परेचर के वेरिएबल में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. वी आर राइटिंग this equation for two different temperature conditions. So if we take a temperature T1, then we accordingly take a rate constant K1, and if we take temperature T2, then we will take accordingly rate constant K2. Now according to that we are writing for two different conditions. The first condition we can write like this: ln of K1 is equal to ln of A. Arrhenius constant is a fixed value, so it is not going to change, minus EA upon RT1. So this is the first equation we need to understand for one condition. Now let us write for the another condition, that is ln of K2, that is for the temperature T2. So ln of A again and minus EA upon RT2, and this is the equation number 2. Now dear friends, अगर हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में दोनों इक्वेशन को लेके आना चाहते हैं तो लेट अस डिडक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2. So we are writing that deducting equation 1 from equation 2. So we are deducting, and therefore we are writing first equation number 2, that is ln of K2 minus ln of K1, which is equal to, we have to write first this terminology, that is ln of A minus E upon RT2, because it is a equation number 2 part.
Therefore we can write like this. Let us prepare a bracket. Ln of A minus EA upon RT2 minus, again a bracket, I will write like this, ln of A minus EA upon RT1. So ln of A minus EA upon RT1. Now let us simplify this. Any equation, whenever it is in logarithm format, then you can and if it is minus, then you can make their divisions. So we can write like this, ln of k2 upon minus ln of k1 को हम ln of k2 by k1 लिख सकते हैं in a simplified format. And I will make simplification of this part, that is ln of A minus EA upon RT2 minus, again ln of A, this minus and this minus, minus become plus, so I will write EA upon RT1. You can see that this ln of A and this ln of A will be cancelled because one is plus and one is minus. So again I can write like this, that is I will put this plus EA upon RT1 first. So I will write like EA upon RT1 minus EA upon RT2. Let us take common things out. हम common चीज़ों को बाहर निकालते हैं. And therefore we can write like EA upon R, that is common in both the terms, and that will form 1 upon T1 minus 1 upon T2. And this is something about ln of K2 upon ln of K1. Now dear friends, अगर हम इसको ln के फॉर्म में से log फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ln की जो वैल्यू है that will be equal to the 2.303 log. And let us put that value. Whenever I will put that value, I will write like this. Therefore, 2.303 log of K2 upon K1 is equal to EA upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2. एंड अब इस इक्वेशन को पूरी मैं 2.303 से डिवाइड कर लेता हूँ. सो इफ आई डिवाइड दिस टर्म विद द 2.303, the 2.303 and 2.303 will be cancelled and we will left with log of K2 upon K1. अगर मैंने लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर लिया है 2.303 से, तो मुझे राइट साइड पे भी 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा. And therefore I will write like this, EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. And this equation को एक सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R. मैं LCM लेता हूँ तो T2 minus T1 upon T1 T2. This is the final format of this equation where there are total 4 variables given. यहाँ पे हमें 4 variables given हैं. वो 4 वेरिएबल्स कौन से हैं? द फर्स्ट वेरिएबल इज दैट K2, द सेकेंड वेरिएबल इज K1, थर्ड वेरिएबल इज T2 and fourth variable is T1. So whenever these points are given to us, any of the 3 are given to us, we can solve for the fourth one. फोर्थ के लिए इसका आंसर निकाल सकते हैं.
So this is the equation you have to keep in your mind, because it is a very important reaction equation to solve many numericals of the second part of the chemical kinetics. तो ये दो टाइप के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से रेडी करने, अच्छे से प्रिपेयर करने, एंड दे आर वेरी यूजफुल न्यूमेरिकल्स टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नाउ डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इसमें हम एक ग्राफ भी बनाएंगे. जब हम डिराइव करते तो एक ग्राफ भी डेवलप करेंगे. और उस ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रीवियस पेज पे चले जाते हैं, वेयर यू कैन सी द ग्राफ. दिस ग्राफ इज प्लॉटेड on the basis of a common reaction, and that common reaction is nothing but this one, that is ln of k is equal to minus EA upon RT plus ln of A. Now अगर हम इस इक्वेशन को y is equal to mx plus c से कंपेयर कर ले, so this will become y is equal to c, this is mx plus c, and you can see that x y को हम ln of k1 यहाँ पे जो प्लॉट किया है, that is ln of k1, that is y axis, and x is equal to nothing but minus 1 upon t1, and x axis is nothing but 1 upon t1. so यहाँ पे वो मेंशन किया है, और इसका जो स्लोप की वैल्यू है, that is nothing but minus EA upon R, which is indicated here, minus EA upon R, and this will be the C, that is intercept ln of A, intercept ln of A. so हमें ये ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट करना है. तो जब भी आप डेरिवेशन ख़त्म करो, या तो बीच में भी जब आप इसको इस पॉइंट पे आके रुकते हो, वहाँ पे भी आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. जब भी आपको एक फुल क्वेश्चन डेरिवेशन वाला पूछा जाए, देन दिस ग्राफ मस्ट बी देयर. एंड एट द फाइनल पॉइंट यू नीड टू राइट, आपको एक पॉइंट लिखना है कि भाई व्हेनेवर out of the 4 variables, 3 variables are given, the 4th variable can be calculated by using the final equation that we just did, that is this is the equation. इसके थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं. So this is all about the derivation of the equation, that is effect of temperature on rate constant. So keep in mind and understand this, and you can make the very easy several numericals which are going to be studied. नाउ हम ये पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. जब हम ये पॉइंट पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि भाई एग्जैक्टली जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, अब वो पार्टिसिपेट करने लगे, एंड देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in the reaction will increase, and they will collide with each other, and therefore they will increase the rate of reaction, and therefore rate constant will also increase. तो हमें इस चीज़ को समझने के लिए एक कर्व है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसको पढ़ना है. अब इसको हम आज पढ़ लेंगे. उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे तो हम इस चीज़ के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज़ द की पॉइंट ऑफ द चैप्टर. तो सबसे पहले आज हम मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है और वो कैसे समझा जाता है, उसको आज हम पढ़ लेते हैं. नाउ डियर फ्रेंड्स, ओवर द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ग्राफ बनाए हुए हैं. सबसे पहले आप अपनी सेशन नोटबुक में ये दोनों ग्राफ डेवलप कर लीजिए, बना लीजिए. और दोनों ग्राफ जब आप 4.8 एंड 4.9 के 2 ग्राफ आप बना रहे हो तो आप उसको अच्छे से लेबल कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन द योर NCERT बोर्ड एग्जामिनेशन. तो वहाँ पे पूछ सकते हैं. और जब भी आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने का टाइम चाहिए, तो आप सेशन को पॉज कर दीजिए एंड जस्ट ड्रॉ इट, एंड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मैं करवाता हूँ मेरे साथ ही आप काम करते जाइए. नाउ डियर फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो, लेट मी जूम इट एंड मेक यू मोर क्लियर. सबसे पहले इस पॉइंट का नाम है मैक्सवेल एंड Ludwig Boltzmann and James Clerk Maxwell use statistics to predict the behavior of large number of molecules when temperature is raised. Temperature जब हम बढ़ाते हैं तब उसका behavior क्या होता है, and therefore this topic is also called as Maxwell and Boltzmann
distribution curve. This topic is also called as Maxwell and Boltzmann distribution curve. Now सबसे पहले इस ग्राफ को हम नोटिस करते हैं एंड दैट इज़ एक नॉर्मल टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर पे यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है. यू कैन सी दैट एक्स एक्सिस is a kinetic energy of the molecules and y-axis is a fraction of molecules, and remember this fraction is a special fraction. Fraction of molecule का मतलब ये होता है कि we have to take fraction of this one, that is Ne upon Nt. अब Ne का मतलब यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एज अ होल, बट Ne का मतलब यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स विथ सफिशिएंट एनर्जी टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन, एंड Nt का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. सो Ne मीन्स मॉलिक्यूल्स विथ सफिशिएंट एनर्जी एंड Nt मीन्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो हमारे पास अगर 100 मॉलिक्यूल्स है रिएक्शन में और उसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है रिएक्शन करने की, तो हम 10/100 करके जो फ्रैक्शन आता है 0.1 उसका यूज़ करके यहाँ पे प्लॉट करते हैं, और उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस से ढूंढ के उसको यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से ग्राफ बना लेते हैं. तो हमें एक कर्व मिला है यहाँ पे, एंड दैट कर्व इज़ लाइक दिस, वेर यू कैन सी दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एज highest fraction of molecules. This is the highest fraction of molecules and they have kinetic energy somewhere here. So this is the highest fraction of molecules that were taking part at this point. और initially जब kinetic energy मीन्स ऐसे कुछ molecule हो गए कि जिसकी kinetic energy बहुत कम है, तो ऐसे fraction of molecules भी बहुत कम होंगे, और जिनकी kinetic energy बहुत ज़्यादा होगी ऐसे fraction of molecule भी बहुत कम होगी. लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी एक एवरेज होगी, एवरेज स्पीड होगी, तो उसका फ्रैक्शन ज़्यादा होगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए. इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक हाईवे का एग्जांपल लेता हूँ कि हाईवे पे सबसे कम 30-40 की स्पीड पे जाने वाली गाड़ियों की संख्या कम होती है. हाईवे पे 120-140 ये हाई स्पीड पे जाने वाली गाड़ियों की संख्या कम होती है, लेकिन हाईवे पे एवरेज स्पीड यानी कि 80-90 पे जाने वाली गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है. तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी जब एवरेज होगी तब उस पर हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगी. जब काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी कम होगा, जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी कम ही होगा. नाउ हम दूसरे ग्राफ में चलते हैं. यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करवाया गया है, और जो राइज करवाने के बाद जो ग्राफ मिला है दैट इज स्लाइटली डिप्रेस एंड ब्रॉडेंस. ये ग्राफ जो है वो थोड़ा ब्रॉड हो चुका है. अब ब्रॉड होने से क्या हुआ कि पहले इतना ही फ्रैक्शन, कोई एक पॉइंट पे हम लेते थे तो भाई इतना ही फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का एरिया अंडर द कर्व जो ब्लैक देख रहे हो उतने ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे. लेकिन जब ग्राफ ब्रॉड होता है तो इतने मॉलिक्यूल्स एडिशनली वो पार्टिसिपेट करने लगते हैं. माने कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ मॉलिक्यूल जो कम स्पीड से जा रहे थे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, एंड दे विल अप्रोच टू दी एवरेज स्पीड या तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो अप्रोच करने का ट्राई करेगी और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. एक सिंपल सा मीनिंग है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड दे विल कोलाइड. जब कोलाइड करेंगे तो वो भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं. पहले जब वो टेम्परेचर नहीं था तो वो शांत थे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से उनको एनर्जी मिली एंड दे स्टार्टेड कोलाइडिंग टू ईच अदर. तो बिल्कुल इस तरीके से वो पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे. तो ये जो शेडेड है लाइन जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, this is the area shows fraction of additional molecules with react at a T+10 टेम्परेचर. जो एडिशनल मॉलिक्यूल जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है जब एडिशनल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड तो बढ़ने ही वाली है. रिएक्शन जो टाइम में पहले ख़त्म हो रही थी उससे जल्दी ख़त्म होने का ट्राई करेगी. तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल की काइनेटिक स्पीड बढ़ती है, उनका फ्रैक्शन जो जिनके पास एनर्जी नहीं थी वो एनर्जी लेके फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ाएगी, और फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मैक्सिमम
most probable speed and its effect over the temperature. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मेंशन किया गया है। ये स्पीड ऐसी होती है जहाँ पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक स्पीड। जिस स्पीड पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस स्पीड को उस रिएक्शन की मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक स्पीड बोलते हैं। ओके, and you have to note it down, that is when the temperature is raised, the maximum of curves moves to higher energy value and the curve broadens out, spreads to the right and such that there is a greater number of molecules, greater proportion of molecules greater proportion of molecules with much higher energy. Okay, and एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि जब आप एनर्जी बढ़ाते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इन रियलिटी वो थोड़ी कम हो जाती है। मीन्स मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करने लगते हैं, उनके पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है, उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है रिएक्शन करने के लिए। एंड कॉमन पॉइंट है कि the curve at T+10 of the area showing the fraction of molecules having energy equal to the greater than the activation energy gets doubled, leading to doubling the rate of reaction. तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड किया गया है कि जब आप 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करते हो तो रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। रेट जो भी रिएक्शन का हो वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्ट इंडस्ट्री में हम ये काम कर सकते हैं कि हमें रिएक्शन को स्पीड डबल कर देनी है तो हम 10 डिग्री राइज टेम्परेचर बढ़ाना है। लेकिन हम ये ध्यान रखना है कि जैसे हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या वो मॉलिक्यूल थर्मोलेबाइल तो नहीं है, उसको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मॉलिक्यूल खुद डिग्रेड नहीं होगा ना, बस उसको ध्यान में रखना है। अगर वो डिग्रेड नहीं हो रहा है और रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई जाती है तो डेफिनेटली वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर वट एवर डिग्री वी वांट। जितना आप बढ़ाओगे उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, प्रोडक्शन लेवल उतना ही बढ़ जाएगा। एंड दिस इज़ मोर प्रिसाइजली फॉर द केमिकल रिएक्शन। जब हम मेडिसिन बनाते हैं, रॉ मटेरियल बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के इंडस्ट्रियल प्लान आउट किया जाता है। सो टुडेज सेकेंड पॉइंट वी अंडरस्टूड, दैट इज मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आई होप यू अंडरस्टैंड। I hope you understand both the points today, that is the derivation of the equation and Maxwell and Boltzmann distribution curve. इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए and be ready for the another sets of examinations, and I hope you understand everything in today's session. Thank you for participating.